Hello everyone. Today I will explain you about the topic that is climate change. है ना? तो before going into the detail of climate change, you should know what is climate. So climate here we can simply define the weather over a long period of time. Long period means 25 to 30 years. है ना? तो 25 to 30 years of day-to-day conditions over a region is called climate. So this is the simply climate. Now, what is climate change? Climate change means climate change refers to the long-term changes in the climatic conditions. Long-term changes means change in the average temperature, change in the rainfall pattern, change in the wind speed and other environmental conditions. So this refers to the climate change. Now the question is that what are the factors which regulate the climate of any particular region, any particular country, any particular continent? So here we have different factors which regulate the climate. First is the temperature, rainfall, wind, humidity, topography and the vegetation, forest cover. Now if someone asks you about give one point that what is the reason behind climate change, अगर आपसे सीधा सीधा कोई ये पूछे कि भाई क्लाइमेट चेंज के पीछे का रीजन क्या है, तो एक लाइन में अगर आपको कहना है तो इसके लिए आप किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे? व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? द मेन रीजन फॉर द क्लाइमेट चेंज इज द ग्लोबल वार्मिंग, है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे एक मुख्य कारण है, मुख्य रीजन है जो क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया को फास्ट करता है ना? तो वाई हाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल वार्मिंग changes the climate. So here we have different environmental factors. Now due to the global warming there is the change in the average temperature of the earth's atmosphere, है ना? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, अर्थ की एटमोस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका चेंज हो जाता है. चेंज होना मतलब बढ़ जाता है. तो पिछले लगभग 100 से 120 सालों में ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है दैट इज 0.6 टू 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड. पिछले 100 सालों में अर्थ की एटमोस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 0.6 से 0.8 डिग्री बढ़ा है. इसी को हमने बोला ग्लोबल वार्मिंग, है ना? तो ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग देयर इज द चेंज इन द एवरेज टेम्परेचर. नाउ दिस टेम्परेचर अलोन is responsible for change in other environmental factors. For example, temperature regulates the rainfall. Temperature ही regulate करेगा rainfall को. Temperature regulates the wind speed. Temperature ही regulate करता है wind की speed को. Because as we know that there is the direct relationship between temperature and the pressure. प्रेशर ड्रॉप होगा, कहीं पे प्रेशर अर्थ के ऊपर ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, जिसकी वजह से विंड प्रिवेल करती है. टोर्नेडो, हरिकेन्स, इस तरह के इवेंट्स होते हैं अर्थ के ऊपर. तो ये जो विंड्स प्रिवेल करते हैं, टोर्नेडो आते हैं, हरिकेन आते हैं, दीज आर ऑल ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर एंड दिस चेंज इन द प्रेशर इज ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, है ना? तो टेम्परेचर रेगुलेट्स रेनफॉल, टेम्परेचर रेगुलेट्स विंड, or we can say that temperature regulate the local evapotranspiration, humidity in the atmosphere. So this temperature is a key factor here. So now these all factors make the climate, and due to change in the temperature, due to change in the average rainfall, due to change in the wind pattern, all these are responsible for the climatic changes in particular region. Here two other important factors are also there which regulates the climatic conditions, है ना? तो one is topography. Topography means the landscape, है ना? What type of landscape is there? Plain is there, slope is there, है ना? Desert is there, altitude, what type of altitude is there, है ना? So that is the topography. And next is the vegetation. More the vegetation, more the forest cover, lesser will be सरफेस हीटिंग, है ना? जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा उतना ज्यादा सरफेस, उतनी कम सरफेस हीटिंग होगी. सरफेस हीटिंग कम होगी तो क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी प्लेजेंट रहेंगी, है ना? तो ऑल दीज फैक्टर्स मेक द क्लाइमेट.
है ना. और एंड इन दिस द मेन की फैक्टर विच regulates the climate is temperature, because temperature regulate all other factors also. More the temperature, है ना, more would be the rainfall due to more evapotranspiration, humidity may be accordingly, wind speed may be accordingly, है ना. Now the question is that what are the causes of climate change? The causes of climate change are generally considered as anthropogenic. ऐसा समझा जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से है ना. बट दिस इज नॉट ट्रू. मैन मेड एक्टिविटीज आर मेजरली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. दिस इज ट्रू. बट सम नेचुरल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, है ना. कुछ नेचुरल प्राकृतिक कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है या होता है ना. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ climate change. So we can divide the causes of climate change into two broad categories. First is natural causes and second is man-made causes. In natural causes, जो natural causes हैं, प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से climate change होता है या हो सकता है, वो क्या क्या है आपके. One is continental drift. Continental drift means, है ना, as we know that there are 7 continents on this earth. 7 continent है हमारे. But the position of all these continents are not fixed, है ना. Position is not fixed. Fix नहीं है position. सभी continents या तो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या एक दूसरे के पास हो रहे हैं. But this movement is very slow. This is only about 0.6 centimeters to 10 centimeter per year. ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ये जो मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से विपरीत, कितना है ये. 0.6 सेंटीमीटर भी हो सकता है या मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर पर ईयर भी ये हो सकता है. तो दिस इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने से क्या होगा, बिकॉज ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देयर इज द चेंज इन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, है ना. एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड अफेक्ट्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो दिस इज द फैक्टर कॉज. नेक्स्ट इज द अर्थ्स टिल्ट. अर्थ्स टिल्ट मीन्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. तो दिस इज एन आइडियल कंडीशन. ये एक आइडियल कंडीशन है, ऐसे एक्सिस होनी चाहिए. बट द एक्सिस ऑफ अर्थ्स रोटेशन इज जस्ट लाइक दिस एंड दिस एंगल इज 23.5 डिग्री. अब ये जो हमारी पृथ्वी का एक्सिस है ये बिल्कुल सीधा वर्टिकल ना होके कैसे है, टिल्ट है थोड़ा सा 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल. सो दिस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज. मोर द टिल्ट, है ना, जितना ज्यादा टिल्ट होगा उतना ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी हार्श होंगी. विंटर और ज्यादा हार्श होंगे, समर्स आपकी और ज्यादा हार्श होंगी. टिल्ट कम होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी स्मूथ होंगी. गर्मियां हैं तो गर्मियां ही रहेंगी, सर्दियां हैं तो सर्दियां ही रहेंगी. दिस इज द रोल ऑफ अर्थ टिल्ट. नेक्स्ट इज थर्ड फैक्टर, थर्ड कॉज, ओशन करंट्स. ओशन करंट्स मीन्स ocean. As we know that 75% of the earth is covered by water bodies and in that 71% is covered by oceans, है ना. तो more the ocean currents, tides, more would be the evaporation, है ना. जितना ज्यादा ओशियन में हलचल होगी, जितने ज्यादा उसमें करंट प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा evaporation होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना. सपोज दिस इज प्लेन सरफेस एंड this is also the condition, oceanic condition. तो in this case the surface area is greater. surface area ज्यादा होगा तो evaporation ज्यादा होगा. evaporation ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है बरसात भी ज्यादा होगी. तो ocean current also contribute to the climate change. Next is the volcano eruption. कभी कभी जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उससे लार्ज क्वांटिटी में गैसेस एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में आ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है एंड ग्लोबल वार्मिंग फर्दर कंट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज आल्सो द फैक्टर बट दिस इज वेरी माइनर फैक्टर, है ना. वोल्केनो इरप्शंस आर वेरी रेयर. नेक्स्ट इज
solar variations. Solar variations means the output of energy, solar radiation from the sun surface, है ना. अर्थ की सरफेस पे जो सोलर रेडिएशन है उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो वेरी कर सकती है. किसी वर्ष वो ज्यादा हो सकती है, किसी वर्ष वो कम हो सकती है ना. तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं. नेक्स्ट कोज, नेचुरल कोज इज द एल नीनो ला नीना साइकिल. तो हियर दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. एल नीनो ला नीना, इसको समझ पाना थोड़ा सा टिपिकल है. इसको सिर्फ अभी यहाँ पे आपको रिमेम्बर रखेंगे, एल नीनो और ला नीना, है ना. तो इसको हम अलग किसी टॉपिक में सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं. एल नीनो और ला नीना क्या होता है ना, इसको आप यहाँ अगर समझेंगे. एल नीनो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेटिक वार्मिंग एंड ला नीना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग ऑफ द क्लाइमेट, है ना. तो दिस साइकिल ग्लोबल साइकिल है कि इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है ना. All these are natural causes. Now come to the man-made causes. Here next is the man-made causes. What are the man-made causes which are responsible for the climate change? So here as we know that, है ना, climate change is due to the global warming. So here first cause is the burning of fossil fuels. More the burning of fossil fuel, more would be the greenhouse effect or generation of greenhouse gases. And these greenhouse gases would cause global warming. And in global warming there is the increase in the temperature of the atmosphere, and again atmosphere contribute to the climate change. So this is the factor. Next is deforestation. So deforestation is also cause climate change because forest absorb large quantity of carbon dioxide from the atmosphere, है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, है ना. तो फर्स्ट सेकेंड, मोर द फॉरेस्ट कवर लेसर वुड बी द सरफेस हीटिंग. दिस इज ऑल्सो द फैक्टर. नेक्स्ट इज यूज ऑफ सम स्पेसिफिक कंपाउंड्स जस्ट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. ऑल दीज कंपाउंड्स और सच कंपाउंड्स आर वेरी harmful for the environment. On the one side, these compounds are responsible for the ozone layer depletion, and on the other side, these compounds are responsible for global warming and the climate change. So this is also the factor. Next main cause, that is the waste burning. So nowadays waste burning is in trend. Waste को burn करना एक ट्रेंड है. जनरली हम वेस्ट से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, सीधा उसको जला देते हैं कि उससे छुटकारा मिल जाएगा. बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. वेस्ट बर्निंग कॉज एयर पोल्यूशन, वेस्ट बर्निंग जनरेट ग्रीन हाउस गैसेज एंड consequently responsible for global warming and which again contribute to the climate change. So today I have briefly discussed about the climate change. In next lecture I will tell you about the impacts and consequences of the climate change.